اس بات سے وڈیرے کی مردانگی پر کاری ضرب لگی۔ میں کیا علاج کرواؤں؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، تم عورتیں اپنا علاج کرواؤ۔ ایسا گھمنڈ نہ کرو وڈیرا، چاروں میں تو عیب نہیں ہو سکتا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا خبر، کوئی دائی نہیں ہوں میں۔ اولاد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عیب ہے، یہ تو رب کی دین ہے، کسی کو دے اور کسی کو نہ دے۔ ایسے بھی شریف لوگ ہیں جو صبر سے بیٹھے ہیں، بیوی میں خرابی ہوتی ہے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں، پر تم نے جان بوجھ کر 4 زندگیاں برباد کر دی ہیں، پھر بھی اپنا علاج نہیں کراتے۔ آخر سبھی تو بانجھ نہیں ہو سکتی نا۔ حکیم سے مشورہ کرنے میں کون سی بے عزتی ہو جائے گی تمہاری۔ نیلا آسمان بھی اس کا گواہ ہے کہ وڈیرا مبارک علی بالکل بن مانس نظر آتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی بھووں نے پوری کر دی تھی، جو گالوں تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ آدھی عمر گزار چکا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں جوانی کے اطوار بھی ابھی تک موجود تھے۔ بوڑھے شیر کی طرح وہ اپنی کچھار میں بیٹھا شکار کو تاکتا رہتا تھا۔ جو بھی داؤ پر لگ گیا کام بن گیا۔ وڈیرے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تپتی دوپہر میں وڈیری شاہ بانو اپنی نوکرانی کے ساتھ کوٹھڑی سے بستر لیے خود ادھر آ نکلے گی۔ اسے دیکھ کر وڈیرے کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ اس موسم میں یہاں گھٹن میں کیا کر رہے ہو؟ شاہ بانو نے ہاتھ سے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے چابیوں کا گچھا نوکرانی کو پکڑایا اور وڈیرے سے سوال کیا۔ ٹھنڈی جگہ ہے نا، مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ وڈیرا منمنایا۔ وہاں ایئر کنڈیشنر سے انگارے برس رہے ہیں کیا؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ جو مزہ قدرتی ٹھنڈک میں ہے وہ ایئر کنڈیشن کی گھوں گھوں میں کہاں؟ اس نے تہمت سنبھالتے ہوئے دانت نکالے۔ شاہ بانو تو ویسے ہی اسے پسند نہ تھی، کیونکہ خاندانی بیویاں تو کم ہی لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ وہ بھی یوں ہی وقت گزار رہا تھا۔ شاہ بانو بھی سب کچھ بھول کر ریڈیو سننے اور ٹی وی دیکھنے میں گم ہو کر رہ گئی تھی، اور کبھی کبھی صوفیانہ کلام اور قافیاں سن کر بھی دل بہلا لیتی تھی۔ مبارک علی جب شاہ بانو سے دلی مراد نہ پا سکا تو بلا تاخیر اس نے دوسرا بیاہ رچا لیا۔ دوسری بیوی سے شروع میں وہ بڑا قریب رہا، لیکن کئی ساون آئے اور گزر گئے، پر جب کوئی بوٹا نہ پھوٹا تو اسے اٹھتے بیٹھتے تانے اور تیسری شادی کی دھمکیاں ملنے لگی۔ نتیجتاً وہ بھی ہراساں ہو کر درگاہوں اور پیروں فقیروں کے پھیرے لگانے لگی۔ راتیں قبرستانوں میں وظیفے پڑھتے اور دن درگاہوں پر سر جھکائے گزرنے لگے۔ گلے میں اسی آس پر کئی تعویذ لٹک رہے تھے کہ شاید دلی مراد مل جائے۔ کبھی کھلم کھلا اور کبھی وڈیرے سے چھپ کر پھرتے پھرتے اس کے برقعے کا پکا رنگ ہی اڑ گیا تھا، اور اس کے چہرے کی ریشم جیسی جلد اپنی چمک کھو بیٹھی تھی۔ مبارک علی بھی آخر اس کو بھلا بیٹھا۔ اس کی نگاہیں ایک برقع پوش نرس کا طواف کرنے لگی۔ اتفاقاً اس نرس کے گھر کا راستہ حویلی کے آگے سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس کے نئے فیشن والے سینڈل کی ہیل خوبصورت پیروں سمیت وڈیرے کے دل کی دیوار میں کیل کی طرح کھپ گئی۔ کبھی کبھی نہ جانے مرد کو کون سی عورت کی ادا بھا جاتی ہے، نہ جانے وڈیرے کا بن مانس پن ہی نرس کو اچھا لگا تھا کہ وہ بھی روزانہ نت نئی سستی خوشبوئیں لگا کر گزرتی، جو شاید عام حالات میں کبھی بھی وڈیرے کو اپنی طرف متوجہ نہ کر پاتی۔ بہرحال جلد ہی نرس دلہن بن کر وڈیرے کی حویلی میں آن اتری، لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، اور یہ شادی بھی وڈیرے کو راس نہ آئی۔ ہاں، اسے گھٹنوں میں درد کا نیا روگ ضرور لگ گیا۔ وہ سرکاری ہسپتال کے باہر بیٹھنے والی ایک عورت سے جونکیں خرید کر گھٹنوں پر لگائے پڑا رہتا۔ جونکوں کی وجہ سے، کچھ ہر وقت بے ڈھنگے پن سے، منہ کھول کر دانت صاف کرنے کی عادت کی وجہ سے، اور کچھ دلی مراد میں تاخیر کی وجہ سے وڈیرا نرس کے گلے میں پھنس کر رہ گیا تھا، جو نہ اگلا جاتا تھا اور نہ نگلا جاتا تھا۔ وہ پریشان رہنے لگی تھی، کبھی کتابیں پڑھ کر دل بہلا لیتی، نہیں تو سر پر پٹی باندھے منہ چھپائے پڑی رہتی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جتنا وڈیرا اس سے دور رہے اچھا ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہی وڈیرا مونچھیں سنوارتا اس کے قریب آیا تو اس نے ناگواری سے کہا، وڈیرے دور ہی رہو۔ کیوں جی؟ کیا میں اب آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، نرس نے کہا، تم تو اچھے لگتے ہو۔ کیا کروں، سر میں درد ہے اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ قریب بیٹھنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ خالی پیٹ پر چائے میں درد کی 3 گولیاں کھائی ہیں، اسی لیے جی بھی مت لا رہا ہے۔
क्या ही अच्छा हो कि तुम कुर्सी खींच कर बैठ जाओ। ये बात वडेरे के खटक सी गई। फौरन बोला, बस बस समझ गया मैं, कुछ कच्चा पक्का है। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये कहता हुआ वो कमीज संभाल कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, नर्स ने जी ही जी में कहा, खुदा ने बला टाली। वडेरा बरामदे से गुजर रहा था कि हवेली की खास मुलाजमा जाफरा मिली। बोली, वडेरा बड़े खुश नज़र आ रहे हो। मुबारक हो जाफरा, आज तुम्हारी वडेरी को मतली हो रही है। वडेरी ने जान छुड़वाने का बहाना किया होगा। बहाना क्यों करेंगी? जाफरा की तरफ तवज्जो भी न की और वडेरा इतराता हुआ चला गया। पर जाफरा की तंज भरी मुस्कुराहट ने उसके दिल में शुबहात ज़रूर पैदा कर दिए थे। थोड़े दिन के बाद जब जाफरा की बात 16 आने सच निकली तो इश्क झाप की तरह बैठ गया और नर्स खुद करदा रा इलाजे नीस के पेशे नज़र ठंडी ठंडी आहें भरती रहती और साथ ही उस घड़ी को कोसा करती जिस घड़ी वडेरा उसके मन को भाया था। वडेरा मुबारक अली की माँ तो बेटे से भी 2 हाथ आगे थी। हर रोज़ आंगन में हुक्का पीते पीते बहुओं का रोना रोती। किसी ने पूछा, बीबी क्या वडेरे के घर खुशी होने वाली है? कहाँ से खुशी होगी? उसने तेज़ी से जवाब दिया, मेरे बेटे ने ऐसी गायें बांध रखी हैं जो ना दूध की ना मौत की। मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रही। मेरे बच्चे की किस्मत में तो बांझ औरतें ही शायद लिखी हैं। बीबी तो फिर एक और शादी करा दो। ये कैसे मुमकिन है? आंख देखे मक्खी कौन निगलता है? 3 तो पहले बैठी हैं, चौथी कौन देगा? क्यों नहीं मिलेगी? दौलत है तो काहे की परवाह, बैठकर सुख से खाएगी, ऐश करेगी। खाने पीने का क्या है? और मैं कोई खाने पीने को थोड़ी लाऊंगी। जिस हसरत में मरी जा रही हूँ बस वही पूरी हो जाए। रोज़ रोज़ के तानों से तंग आकर आखिर वडेरी ने अपने बेटे की चौथी शादी का फैसला कर ही लिया। आदमी को नुटन की तरफ दौड़ाया जो अपने लाल रुमाल और नस्वार की डब्बी समेत फौरन हवेली आ पहुंची और किराए के पैसे समेटकर मुहिम पर रवाना हो गई। अब के कुर्रे में शाहिदा का नाम निकला, जिसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि वो अपने गरीब वालिदैन के कंधों का बोझ थी। शादी के दोनों तरफ के अखराजात वडेरे ने पूरे करने का वादा कर लिया था, लेकिन जब तक शादी की तारीख मुकर्रर नहीं हो गई वडेरे को यकीन न आया। जब सुनहरी रंगत वाली शाहिदा दुल्हन बनकर धूमधाम से हवेली के आंगन में उतरी तो वडेरे ने अपनी ज़िंदगी में बहार के नए झोंके महसूस किए। एक तरफ औरतें सुरीले नगमे छेड़े हुए थी तो दूसरी तरफ ढोलक की थाप ठहरने का नाम न ले रही थी। गालीचों में झिलमिल कपड़ों में मलबूस मेहमानों से परे तीनों सोकने जो चौथी के आने के बाद एक ही ग्रेड में आकर बाहम शीरो शक्कर हो गई थी, अपने दिलों का गुबार निकाल रही थी। हमने कौन सा तीर मार लिया जो अब ये मकड़ी आई है सोने के अंडे देने? अगर इसने भी धूप में नंगे सर बुढ़िया सास की 7 पुश्तों को ना कोसा हो तो मेरे मुंह पर थूक देना। शादी की रस्में खत्म हुई तो दूल्हा अपने दोस्त यारों से जान छुड़वाकर सजे सजाए कमरे में आया और दुल्हन का घूंघट उठाते हुए बोला, ओफ, ऐसा हुस्न तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये शहद जैसे मीठे बोल भी शाहिदा को कड़वे लगे, अलबत्ता अल्फाज की बरजस्तगी अच्छी लगी। आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। वडेरे ने पोपले मुंह से आवाज़ निकाली। दुल्हन ने जब वडेरे की पोपली आवाज़ को महसूस किया तो वो कली एकदम मुरझा सी गई। दुखों में पली लड़की को यकीन हो गया कि बाकी जीवन कांटों भरा ही है। उसकी आंखों से सावन भादों की झड़ी लग गई। वडेरे मुबारक अली ने घबरा कर कहा, ना रो, मैं जानता हूँ कि रिश्तेदारों की जुदाई ने तुम्हें बेहाल कर रखा है। घबराओ नहीं, उनसे तुम्हारी जल्दी जल्दी मुलाकात होगी। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नई दुल्हन से वडेरे की चाहत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। इधर उधर से घूम फिर कर बार बार उसके पास आन बैठता और मीठी मीठी बातें करता। सास भी उससे बहुत प्यार करती थी और कहती रहती कि अपनी बहू पर सदके वारी जाऊं, मेरी जीत आखिर तुम्हारी ही वजह से होगी। हम माँ बेटे तुम ही से आस लगाए बैठे हैं। इसी तरह एक रोज़ वारी सदके होते होते सास ने जब बहू को गले लगाने की कोशिश की तो उसके जबड़े की हड्डियां दुल्हन की कनपटी में जा लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई, चाची तुमने तो मार डाला, मेरी कनपटी फाड़ दी। गधी को भी कभी हार पहनाए जाते हैं? सास आग बगूला हुई, मेरे गले लगते ही तुम्हारी कनपटी फट रही है। खूब, इतनी नाजुक परी हो।
कंगले माँ बाप की बेटी हो, क्या वहाँ भी यही नखरे करती थी? शुक्र करो कि मेरे शहजादे ने ब्याह रचा लिया, वरना सारी उम्र बैठी रहती। सास बुड़बुड़ाती हुई जब दूसरे कमरे में चली गई तो शाहिदा ने कनीज को आवाज़ दी, जिस पर वो दौड़ी दौड़ी आई और परेशान होकर बोली, मैं सदके, क्या हुआ मेरी छोटी दुल्हन को? तुम्हारी बुढ़ी वडेरी के प्यार ने मेरी जान ले ली है। हाय अल्लाह, क्या हुआ? वडेरा आएगा तो क्या कहेगा? वो आके क्या करेगा? कौवे के पर सोने के होते तो उड़ते में नजर आते। बीबी, ऐसी तो हमने नहीं सुनी, वो तो कुछ और ही है। चली जा लड़की, कोई चीज ला कर दे, मैं कनपटी सेंकूं। आधी रात को जब वडेरा बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदल रहा था, उसकी कोहनी शाहिदा के जा लगी, जो नींद में बेजारी से चीख पड़ी, क्या करते हो वडेरा? मेरी पसलियां तोड़ डाली। कीड़ा, वडेरे ने कराहते हुए सिर्फ इतना कहा। वो छलांग मारकर बिस्तर से कूदी और दहशत भरी निगाहों से चादर तकने लगी। डरो नहीं, बिस्तर में कीड़ा नहीं है। मैंने ख्वाब में तो नहीं देखा कीड़ा। मैं इतना बदज़ोक तो नहीं हूँ कि ख्वाबों में कीड़े देखूं। मैं ये कह रहा था कि दाढ़ के कीड़े ने दर्द से बेहाल कर रखा है। अल्लाह, वो कराहने लगा। दांतों में भी कीड़े पड़ गए। बस वडेरा, तुम तो गए अब। क्यों जाऊं मैं? अच्छी बात मुंह से निकाला करो, कभी कभी कबूलियत की घड़ी भी होती है। फिर दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो अकड़ कर बोला, सुबह ही जाकर इस दाढ़ को निकलवा दूंगा। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे जंबूर से निकलवाने? ये खुद ही गिर जाएंगे। मैं ऐसा बूढ़ा भी नहीं हूँ। अब कौन सी जवानी टूट रही है तुम पर? सर ना खाओ, जाओ और सो जाओ। ये कहकर वो जैसे ही उठा, कमर के बल नीचे जा गिरा। दुल्हन ने उठकर उसे सहारा देने की कोशिश की तो वडेरे ने हाथ झटक दिया और बोला, तुम्हारी अंट शंट बातों में उलझकर पैर फिसल गया, वरना कोई माजूर तो नहीं हूं मैं कि तुम मुझे उठाओगी। पाँव फिसल गया, दुल्हन ने तंज किया। पाँव क्यों फिसलेगा? ये तो री दर्द है, वरना मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हूँ कि अभी से मेरे घुटने टूट जाएं। उसने पट्टी पकड़कर उठने की कोशिश की तो बराबर में रखा हुआ चांदी का गिलास छनाके के साथ नीचे जा गिरा। आधी रात को क्या शोर मचा रखा है? क्या चाहिए? मुझसे कहो, मैं दे दूंगी। अलमारी में दाढ़ की दवा मिल जाए तो ले आओ, उसने पलंग पर बैठते हुए कहा। कमरे की चारों बत्तियां रोशन करने के बावजूद दुल्हन को कोई दवा दिखाई ना दी, तो आखिर में सास की निस्वार की डबिया में से चुटकी भर नास ले आई और वडेरे की दाढ़ में भर दी। काश तुम्हारे खूबसूरत हाथों के सदके दर्द में कमी हो जाए, उसने लेटते कहा। वो भी पहलू में बैठ गई। जब उसने देखा कि वडेरे के मुंह से रंग बिरंगी फू फा की आवाज़ें निकलने लगी हैं तो समझ गई कि वडेरे को नींद आ गई है। लेकिन उसकी अपनी नींद उड़ चुकी थी और तकलीफ दे सोचों ने उसे आन घेरा था। बज़ाहिर तो वो बड़े रोब दाब से रहती थी। उसने मुकद्दर का लिखा समझकर उसे जैसे तैसे गुजारने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन एक आसरे और एक सहारे पर। जब काफ़ी दिन हो गए तो उसे यकीन हो गया कि इस गुलशन में कभी फूल ना खिलेंगे। उसके नसीबों में कांटे ही कांटे हैं। उसने तहैया कर लिया कि अब वडेरे से सख्त रवैया इख्तियार करेगी। सुबह उठते ही उसने अपने फैसले पर अमल दरामद करते हुए वडेरे को झंझोर डाला। उसने अभी सिगरेट का कश ही ना लिया था कि वो बोली, वडेरा, मेरी ही ज़रूरतों का ख्याल करो। क्या सुबह शाम बैठे कश लगाते रहते हो? इस छोटे से कस्बे में मैंने तुम्हें मलकाओं की तरह आसाइश और आराम मुहैया किया है। अब और क्या चाहिए? मुझे सिर्फ मेरे दिल का चैन चाहिए। बरसों गुजर गए वडेरा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे भी अम्मी कहकर पुकारे। अल्लाह से उम्मीद रखो। उसने सिगरेट का आखिरी कश लेकर टूटा हुआ टुकड़ा फेंकते हुए कहा, वजीफ़ा तो हर जुमा रात को पढ़ता हूँ। ये जुमा रात का क्या शोशा छूटा है तुमसे? इस शोशे का तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आखिर अपने मुअज्जिन सावन के भी तो किसी वजह से ही 18 बच्चे हुए हैं। उसने आंख दबाकर सर हिलाते हुए कहा, ये दिलासे तुम किसी और को दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम देखना। हाँ देखूंगी, तुम क्या गुल खिलाते हो। अल्लाह पर छोड़ दो। वो शिकार की नीयत से सुबह सवेरे बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था। रात को दर्द से चिल्ला रहे थे और अब शिकार के लिए कहाँ चले हो? ऐसे दर्द हम सख्त जानों का क्या बिगाड़ लेंगे? ये कहता हुआ वो सीना ताने कारतूस की पेटी उठाकर बंदूक को दाएं कांधे पर लटकाए जीप में जा बैठा, जहां 2-4 आदमी पहले ही उसके इंतजार में बैठे थे। इसी तरह पूरी 16 जुमारातें गुजर गईं, लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ। शाहिदा के तानों में वो सारे शौक भी भुला बैठा था, बस पड़ा रहता। इस दौरान मिजारे आकर कहते कि साईं फसल डूब रही है तो जवाब देता, डूबने दो।
आखिरकार ज़मीनों का काम उसके रिश्ते के भाइयों ने आकर संभाला। माँ के कहने पर उसने नई जोक लगा ली थी। पहली बीवियाँ तो मुकद्दर का लिखा समझकर चुप बैठी थी, लेकिन इस तरारा ने वडेरे का नाटका बंद कर दिया था। दिन रात चिल्लाती रहती, लेकिन उसकी सारी चीखों पुकार का वडेरा सिर्फ यही जवाब देता, मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैंने मौलवी मुल्ला सब आजमा लिए, सभी जुमारात का वजीफा बताते हैं। जुमारात के चक्कर में क्यों आ गए हो? किसी हकीम के पास क्यों नहीं जाते? शाहिदा की इस बात से उसकी मर्दानगी पर कारी ज़रब लगी थी। मैं क्यों इलाज करवाऊं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। तुम औरतें अपना इलाज करवाओ। ऐसा घमंड ना करो वडेरा, चारों में तो ऐब नहीं हो सकता ना, एक ही में हो सकता है। मुझे क्या खबर, मैं कोई दाई तो नहीं हूँ। औलाद ना होने का मतलब ये नहीं कि कोई ऐब है, ये तो रब की देन है, किसी को दे किसी को ना दे। ऐसे भी शरीफ लोग हैं जो सब्र से बैठे हैं, बीवी में खराबी होती है तो दूसरी शादी कर लेते हैं। पर तुमने तो यहाँ जानबूझकर 4-4 जिंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, फिर भी अपना इलाज नहीं करवाते। आखिर सभी तो बांझ नहीं हो सकती। हकीम से मशवरा करने से कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत तकरीर कर ली, अब चुप रहो, कहीं चक्कर ना आ जाए। चक्कर मुझे तो नहीं, दस्तरखान बिछाने के लिए आने वाली नौकरानी को देखकर अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। मुबारक अली ने हकीम के यहाँ जाने से बहुत जान छुड़ाई, लेकिन शाहिदा ने उसे भेज कर ही दम लिया। वडेरा जब हकीम के यहाँ से लौटा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हकीम ने क्या कहा? उसे देखते ही शाहिदा ने लपक कर पूछा। हकीम ने तो मुझे बड़े झंझट में डाल दिया है, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कैसा झंझट? जो बात है वो साफ साफ बताओ, दिल ही दिल में क्यों घुट रहे हो? मेरी जान, ये कहकर उसने हाथ में दी हुई हकीम की बड़ी सी पुड़िया को देखा और सोच में डूब गया। क्यों, किस सोच में डूब गए हो? ऐसी क्या बात हो गई? वो पहलू में आन बैठी। सही बात बताऊं? हकीम ने कहा है कि मुझ में ही थोड़ी खराबी है, उसने झिझकते हुए कहा। मुए मरीज, तो मुझसे शादी क्यों की थी? मुझ अच्छी भली लड़की की जिंदगी उजाड़ दी। ये कहकर उसने अपना मुंह और सर पीटना शुरू कर दिया। हाय, मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर वाले मुझे 32 बीमारियों वाले मगरमच्छ के मुंह में दे रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। मेरी जान, रो तो नहीं, मेरी बात तो पूरी सुनो। वडेरा घिघियाया। बस थोड़ी सी खराबी है, बस, शाहिदा ने बात काट कर कहा। वो बेचारी तीनों साबिर और मासूम लड़कियां थीं जिन्होंने तुम्हारे दर पर बाल सफ़ेद कर लिए और दुनिया जहान के ताने सुनकर भी खामोश रहीं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, उसने बेबाकी से कहा। औलाद के लिए तुम अपने शोहर को बदनाम करोगी? मैंने क्या कसूर किया है कि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी? शरीयत में तो ऐसी शादी जायज़ ही नहीं है। तुम मेरे ऑपरेशन तक तो सब्र कर लो, मुझे बदनाम ना करो और ना खुद को। इस बुढ़ापे में ऑपरेशन करवा के क्या अपनी खाल उतरवाओगे? और फिर हासिल क्या होगा? फिर क्या करूं? तुम्हारे लिए हकीमों तक तो पहुंच गया हूं। मैं सारी उम्र जवान तो नहीं रहूंगी और तुम भी हमेशा तो नहीं रहोगे। बुढ़ापे में तो अपनी औलाद ही काम आती है। मेरी जान, हमारे पास बेइंतहा दौलत है, औलाद का क्या करोगी? मैं दौलत पर थूकती हूँ, मेरे पुकारने पर दौलत दौड़ी तो नहीं चली आएगी। औलाद बीमारी आजारी में काम तो आती है, ये बंगले हवेलियाँ किस काम के? ऐसी बातें तो ना करो, कुछ तो शर्म करो। वो कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर बोली। आखिर शरा तुम्हें 4 शादियों की इजाज़त देती है तो मुझे भी 3 बोल हासिल करने का हक है, ताकि इसके बाद मैं भी किसी ठिकाने जा लगूं। वडेरा मुबारक अली, जो अब तक नरमी से पेश आ रहा था, एकदम भड़क उठा। दवा की पुड़िया खिड़की से बाहर फेंककर शाहिदा को लात रसीद करते हुए बोला। औलाद की इतनी ख्वाहिश है ना तो पूरी हवेली भरी पड़ी है, जाकर मुंह काला कर ले। बाकी रही तलाक की बात तो 100 जूते लगाऊंगा और गिनूंगा 1। बड़ी आई औलाद की चाहने वाली, मुझे बदनाम करेगी। चल हट, जाके काम कर जिस तरह वो करती हैं। और शाहिदा बेचारी मुंह उठाकर चली गई कि इसके अलावा उसका कोई और चारा ना था।